اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم جو ہے وہ وسعت یعنی گنجائش کے اعتبار سے دو قسموں میں بڑھتا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں معرفہ، دوسرے کو ہم کہتے ہیں نکرہ. پھر ہم نے پڑھایا تھا کہ معرفہ کس کو کہتے ہیں اور نکرہ کس کو کہتے ہیں. پھر میں نے بتلایا تھا کہ معرفہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز میں نے بتلائی تھی کہ معرفہ کو پہچاننے کا دو طریقہ ہے، یا معرفہ دو چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک وہ لفظ جس پر الف لام لگا، ہم اس کو معرفہ کہیں گے. جیسے طالبن، اس پر الف لام لگا تو الطالب، تو الطالب کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا، اور اس کا نام ہوگا معرب ال. اور دوسری چیز جو معرفہ ہوتی ہے وہ علم ہے. علم کیا ہے؟ علم کے بارے میں بھی میں نے بتلایا تھا، کسی جگہ یا کسی شخص یا کسی چیز کے خاص نام کو علم کہتے ہیں. یہ دو چیزیں معرفہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب کیا ہیں؟ نکرہ. یہ بتلایا گیا تھا نا کہ صرف دو چیزیں معرفہ ہوتی ہیں. نمبر ایک معرب ال یعنی وہ لفظ جس پر الف لام لگا ہو. نمبر دو علم یعنی کسی شخص، کسی جگہ یا کسی چیز کا خاص نام. یہ دو چیز معرفہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں سب کیا ہوتی ہیں؟ نکرہ ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد بتلایا گیا تھا کہ اسم پھر دو قسموں میں بڑھ جاتا ہے. نمبر ایک مذکر، نمبر دو مؤنث. جنس کے اعتبار سے نمبر ایک مذکر، نمبر دو مؤنث. مذکر کے بارے میں بتلایا گیا تھا کہ مذکر وہ لفظ ہے جو کسی نر کو بتلایا جس کے آخر میں مؤنث کی کوئی علامت نہ ہو. پھر بتلایا گیا تھا مؤنث. مؤنث وہ لفظ ہے جو کسی مادہ کو بتلائے یا جس کے آخر میں مؤنث کی تین نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہو. مؤنث کی تین نشانیاں، تین علامات. نمبر ایک غصہ یعنی زائد مصغرہ. نمبر ایک الف کے بعد حمزہ یعنی الف ممدودہ. نمبر تین یا پر کھڑا زبر یعنی الف مقصورہ. اگر کسی لفظ کے آخر میں ان تینوں نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی ہو تو فوراً سمجھ جاؤ کیا ہے؟ مؤنث ہے. اور اگر ان تینوں نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی نہ ہو تو فوراً سمجھ جاؤ کیا ہے؟ مذکر. پھر اس کے بعد جو بات چلی تھی وہ اسم کی ایک اور تقسیم تھی، اور وہ عدد اور تعداد کے لحاظ سے. تعداد کے لحاظ سے اسم تین حصوں میں بڑھ جاتا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں واحد، دوسرے کو ہم کہتے ہیں مثنیٰ، تیسرے کو ہم کہتے ہیں جمع. واحد کس کو کہتے ہیں؟ واحد کہتے ہیں اس لفظ کو جو ایک چیز کو بتلائے، جو ایک پر دلالت کرے. اور مثنیٰ کہتے ہیں اس لفظ کو یعنی واحد سے بنا ہوا وہ لفظ جو دو کو بتلائے. اور جمع کہتے ہیں واحد سے بنے ہوئے اس لفظ کو جو دو سے زائد کو بتلائے. جو ایک کو بتلائے وہ واحد، جو دو کو بتلائے وہ مثنیٰ، جو دو سے زائد کو بتلائے وہ جمع. جیسے مرواحۃ، ایک پنکھا. اب لفظ مرواحۃ ایک پنکھے پر دلالت کر رہا ہے تو لفظ مرواحۃ ہو گیا واحد. مرواحتان، اب مرواحۃ سے بن گیا مرواحتان، دو پنکھا. اب مرواحتان دو پنکھے پر دلالت کر رہا ہے تو لفظ مرواحتان کیا ہو گیا؟ مثنیٰ. پھر اس کے بعد تیسرا لفظ ہے مراویح. مراویح مانے بہت سے پنکھے. اب لفظ مراویح ایک یا دو پنکھے پر دلالت نہیں کر رہا ہے، یا ایک یا دو پنکھے کو نہیں بتلا رہا ہے، بلکہ بہت سارے پنکھوں کو بتلا رہا ہے تو لفظ مراویح کیا ہو جائے گا؟ جمع. اتنی چیزیں اب تک ہو چکی ہیں. اب آگے ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ اب آگے ہمیں پڑھنا ہے کہ واحد سے مثنیٰ کیسے بنائیں گے اور واحد سے جمع کیسے بنائیں گے. تین ہی چیز ہوتی ہے نا، نمبر ایک واحد، نمبر دو مثنیٰ، نمبر تین جمع. مثنیٰ جو ہے وہ بھی واحد سے بنتی ہے اور جمع جو ہے وہ بھی واحد سے بنتی ہے. یہ دونوں چیزیں مثنیٰ اور جمع دونوں کس سے بنائے جاتے ہیں؟ واحد سے بنتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ واحد سے ہم مثنیٰ کیسے بنائیں گے. مان لو کتاب، ایک کتاب. مرواحۃ ایک پنکھا. صف ایک کلاس. ولد ایک لڑکا. رجل ایک آدمی. سبورۃ ایک بلیک بورڈ. لیکن اب آپ کو کہنا ہے دو بلیک بورڈ، دو لڑکا، دو کاپی، دو کلاس، دو استاد، دو لڑکے. اب کیسے آپ کیا کریں گے؟ مثال کے طور پر دیکھو، کتاب، ایک کتاب. اب اس کی مثنیٰ تمہیں بنانا ہے، کہنا ہے دو کتاب. کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا طریقہ ہے. اسی طرح سے ولد مانے ایک لڑکا. اب تمہیں اس لفظ کا تمہیں مثنیٰ بنانا ہے، یعنی تمہیں کہنا ہے دو لڑکا، تو کیا کرو گے؟ اسی طرح سے سبورۃ. سبورۃ کا معنی ہوتا ہے ایک بلیک بورڈ. اب تمہیں کہنا ہے دو بلیک بورڈ، تو کیا کرو گے؟ یہی دیکھنا ہے نا. تو واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے. کیا طریقہ ہے؟ لفظ واحد جو ہے، کتاب واحد ہے نا، ولد واحد ہے، سبورۃ واحد ہے. اس کے آخر میں تم الف نون بڑھا دو یعنی آنے، فوراً مثنیٰ بن جائے گا.
किताबुन के आखिर में अलिफ नून पढ़ाओ, किताबानी, अब हो जाएगा माना दो किताब, मुसन्ना बन गया कि नहीं बन गया। वलदानी, अलिफ नून पढ़ाओ, वलदुन के आखिर में वलदानी, दो लड़के, मुसन्ना बन गया कि नहीं बन गया। सब्बूरतुन, सब्बूरतानी, अलिफ नून पढ़ाओ, क्या हो गया, दो ब्रैकेट, मुसन्ना बन गया। तो मुसन्ना बनाने का कायदा बहुत आसान है, वाहिद के आखिर में क्या पढ़ा दोगे, अलिफ नून। मिरवातुन एक पंखा, मिरवातानी दो पंखे, मदरसतुन एक मदरसा, आने पढ़ा दो, मदरसतानी दो मदरसे, सफ़ुन एक क्लास, अलिफ नून पढ़ा दो, सफ़ानी दो क्लास, वलदुन एक लड़का, अलिफ नून पढ़ा दो, वलदानी क्या हो गया, दो लड़के। तो वाहिद से मुसन्ना बनाने के लिए लफ्ज़ पढ़ाते हैं आने, यही किस तरह से पढ़ाते हैं इसको देख लो। मान लो एक लफ्ज़ है किताब, अब इसकी तुम्हें बनाना है मुसन्ना। मुसन्ना बनाने का तरीका मैंने बतला दिया है कि उसके आखिर में क्या पड़ेगा, आने। किसी भी लफ्ज़ के आखिर में अगर आने पढ़ा देते हो तो फ़ौरन क्या बन जाएगा, मुसन्ना बन जाएगा। लेकिन किस तरह से बनाएंगे इसको देखो। लफ्ज़ किताबों को तुम्हें मुसन्ना बनाना है, तो लफ्ज़ किताबों का आखिरी हर्फ क्या है, बा, यही आखिरी हर्फ है ना। लफ्ज़ वलदुन की तुम्हें मुसन्ना बनाना है, वलदुन का आखिरी हर्फ क्या है, दा। लफ्ज़ सब्बूरतुन की तुम्हें लफ्ज़ सब्बूरतुन का मुसन्ना बनाना है, तो इसका आखिरी हर्फ क्या है, ता। इन तीनों की तुम्हें मुसन्ना बनानी, इन तीनों अल्फाज का आखिरी हर्फ को तुम देखोगे, आखिरी हर्फ पर तुम्हें फतहा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, फतहा। ठीक, फिर देख रहे हो, सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है, इस लफ्ज़ की तुम्हें मुसन्ना बनानी है, तो सबसे पहले तुम करोगे जो आखिरी हर्फ उस पर फतहा यानी ज़बर दे दो। क्या दोगे, फतहा यानी ज़बर। अब उसके आगे आने पढ़ा दो, क्या हो गया, वलदानी, इसके आखिर में आने पढ़ा दो, क्या हो गया, किताबाने। जब इसके आखिर में आने पढ़ाओगे तो ये ता इस तरह से लिख दोगे, क्या हो गया, आसान है कि नहीं बनाना, मुसन्ना बनाना आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है। किसी भी लफ्ज़ की अगर तुम्हें मुसन्ना बनाना है तो लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर ज़बर दो और उसके बाद क्या पढ़ा दो, आने। वलदुन, आखिरी लफ्ज़ दाल है, दाल पर ज़बर दो, आने पढ़ा दो, वला दाने। ज़ाहिबुन, आखिरी हर्फ बा है, बा पर ज़बर दो, आने पढ़ा दो, ज़ाहिबा नहीं। तो वाहिद से मुसन्ना बना लोगे ना, वाहिद से मुसन्ना बनाने के लिए क्या पढ़ाओगे, आने। और कैसे पढ़ाओगे, लफ्ज़ के आखिर वाले को ज़बर दोगे यानी फतहा दोगे और उसके बाद आने पढ़ा दोगे। अब उसके बाद आओ जमा। वाहिद से मुसन्ना बनाने का तरीका आ गया कि नहीं। देखो, मुसन्ना भी वाहिद ही से बनती है और जमा भी वाहिद से बनती है। जमा को भी अगर बनाना है तो वाहिद से बनाएंगे, मुसन्ना भी बनाना है तो किससे बनाएंगे, वाहिद से बनाएंगे। वाहिद से मुसन्ना बनाने का तरीका तुमने सीख लिया कि नहीं। अब तुम्हें सीखना है वाहिद से जमा बनाने का तरीका। वाहिद से जमा बनाने का तरीका भी आसान है, लेकिन उससे पहले ज़रा देखो जमा। ये नक्शा देखकर तुम्हारे ध्यान में क्या बात आ रही है कि जमा की कितनी किस्में हो जाती हैं, जमा सालिम मुज़क्कर, जमा सालिम मुअन्नस, जमा मुकस्सर। इस नक्शे को देखकर यही बात तुम्हारे ध्यान में आ रही है ना कि जमा की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। हर जमा को बनाने का अलग तरीका है। जमा सालिम अलग है, जमा मुकस्सर अलग है, और जमा सालिम मुज़क्कर अलग है, जमा सालिम मुअन्नस अलग है, और जमा मुकस्सर अलग है। ठीक, अब सबसे पहले लेते हैं जमा सालिम मुज़क्कर। अगर जमा सालिम मुज़क्कर बनाना है तो इसका तरीका बहुत आसान है। मान लो एक लफ्ज़ है जालिसुन, एक लफ्ज़ है कातिबुन, एक लफ्ज़ है आकिलुन और एक लफ्ज़ है ज़ाहिबुन। इतने लफ्ज़ हैं, 4 लफ्ज़ ना, ज़ाहिबुन, आकिलुन,
साजिदुन, फिर उसके बाद एक करते हैं तालिबुन। ये 4 लफ्ज़ हैं। अगर इनकी जमा बनाना है तुम्हें, जमा क्या बनाना है, जमा सालिम मुज़क्कर। जमा सालिम मुज़क्कर बनाने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ वाव और नून बढ़ा देते हैं, ऊना। क्या बढ़ाते हैं, जमा सालिम मुज़क्कर बनाने के लिए क्या बढ़ाएंगे, वाव नून यानी ऊना। अब क्या हो जाएगा, ज़ाहिबूना, आकिलूना, साजिदूना, तालिबूना। एक लफ्ज़ है मरीज़ुन, अब उसकी जमा सालिम मुज़क्कर बनानी है तो क्या बढ़ाओगे, वाव नून यानी ऊना। क्या हो जाएगा, मरीज़ूना। एक लफ्ज़ है कातिलुन, उसकी जमा सालिम मुज़क्कर बनानी है तो क्या बढ़ाओगे, वाव नून। क्या हो जाएगा, कातिलूना। समझ में आ गया कि नहीं। जमा सालिम मुज़क्कर बनाने के लिए लफ्ज़ के आखिर में क्या पढ़ाते हैं, वाव नून यानी ऊना, यही बढ़ाते हैं, ऊना। अब जैसे मिसाल के तौर पर देखो, पहला लफ्ज़ है ज़ाहिबुन और दूसरा लफ्ज़ है मान लो साजिदुन। इन दोनों लफ्ज़ को तुम्हें क्या बनाना है, जमा सालिम मुज़क्कर। मैंने बतला दिया है जमा सालिम मुज़क्कर बनाने का तरीका क्या है। क्या है जमा सालिम मुज़क्कर बनाने का तरीका, आखिर में क्या बढ़ा देते हैं, वाव नून। लेकिन कैसे बढ़ाएंगे अब इसको देखना है। ये लफ्ज़ ज़ाहिब है ना, इसमें आखिरी हर्फ क्या है, बा। लफ्ज़ साजिद है ना, इसमें आखिरी हर्फ क्या है, दा। जमा सालिम मुज़क्कर बनाने के लिए क्या करते हैं, जो किसी लफ्ज़ का जो आखिरी हर्फ होता है उस पर हम एक पेश कर देंगे। कितना, अगर 2 होगा तो क्या कर देंगे, 1, या कुछ भी होगा तो हम वहाँ क्या करते हैं, एक पेश, यानी उसको कहते हैं ज़म्मे खफीफ़ा। एक पेश को क्या कहते हैं, ज़म्मे खफीफ़ा, और 2 पेश को कहते हैं ज़म्मे सक़ीला। ठीक। अब हम इस लफ्ज़ के आखिरी वाले हर्फ पर करेंगे एक पेश। अब क्या हो जाएगा, ज़ा ही। ठीक। अब इस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर हम क्या करेंगे, कितना पेश रहेगा, ज़म्मे सक़ीला या खफीफ़ा, ज़म्मे खफीफ़ा यानी एक पेश। क्या हो जाएगा, सा जी तू। अब इसी के आखिर में हम वाव जोड़ देंगे, ऊना ऊना। अब पढ़ो, ज़ाहिबू ना, साजिदू ना। तो आसान है कि नहीं। जमा सालिम मुज़क्कर बनाना बहुत आसान है। लफ्ज़ के आखिर में सिर्फ तुम्हें क्या जोड़ना है, वाव नून यानी ऊना। ज़ाहिबूना, कातिलूना, साजिदूना, आबिदूना, साइबूना, साइमूना, साइमून से साइमूना, साइहुन से साइमूना, ज़ाहिरुन से ज़ाहिरूना, कायलून से कायलूना। तो जमा सालिम मुज़क्कर बनाने का तरीका आ गया। अब उसके बाद देखो जमा सालिम मुअन्नस। जमा सालिम मुअन्नस, जमा सालिम मुअन्नस बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। अगर किसी लफ्ज़ की तुम्हें जमा सालिम मुअन्नस बनानी है तो उसके आखिर में तुम अलिफ और ता बढ़ा दो। क्या बढ़ाओ, अलिफ और ता यानी आतुन। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, साजिदतुन। अब इसकी तुम्हें बनाना है जमा सालिम मुअन्नस, तो इसके आखिर में तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा आतुन, साजिदातुन। कातिलातुन है, उसके आखिर में तुम पढ़ा दोगे क्या, आतुन, कातिलातुन। आबिदतुन है, उसके आखिर में आप पढ़ा देंगे आतुन। क्या हो जाएगा, आबिदातुन। तो जमा सालिम मुअन्नस बनाने के लिए किसी लफ्ज़ के आखिर में क्या पढ़ाते हैं, अलिफ और ता यानी आतुन। जमा सालिम मुज़क्कर बनाने के लिए ऊना, और जमा सालिम मुअन्नस बनाने के लिए आतुन। साजिबुन, ज़ाहिबुन, ज़ाहिबूना, ज़ाहिबतुन, ज़ाहिबातुन। देख रहे हो, जमा सालिम मुज़क्कर बनाना है तो वाव नून पढ़ा दो, जमा सालिम मुअन्नस बनानी है तो अलिफ और ता पढ़ा दो। फिर उसके बाद तीसरी जमा, जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर बनाने का कोई तरीका नहीं, समझ गए। जमा मुकस्सर बनाने का कोई तरीका नहीं है। जमा मुकस्सर तुम्हें याद करनी पड़ेगी। जमा मुकस्सर तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, जमा सालिम मुज़क्कर बनाने का तरीका है, लफ्ज़ के आखिर में वाव नून पढ़ा दो, जमा सालिम मुज़क्कर बन गई।
जमा सालिम मुअन्नस बनाने का तरीका है, लफ्ज़ के आखिर में अलिफ और ता पढ़ा तो आतुन पढ़ा दो, जमा सालिम मुअन्नस बन गई। लेकिन जमा मुकस्सर बनाने का कोई तरीका नहीं। अब सवाल पैदा होता है कि हम कैसे समझेंगे कि जमा मुकस्सर है? जब तरीका नहीं है बनाने का तो कैसे समझो कि जमा मुकस्सर है कि नहीं? कोई अलामत होनी चाहिए ना पहचानने की। देखो जब आगे पढ़ते जाओगे तो कोई लफ्ज़ जब तुम्हारे सामने आएगा तुम फ़ौरन समझ जाओगे जमा मुकस्सर है, क्योंकि उसके अपने अलग अलग अवज़ान हैं, तो हम बाद में पढ़ाएंगे उसके अलग अलग अवज़ान क्या हैं। लेकिन यहाँ एक कायदा याद रखो। मिसाल के तौर पर देखो लफ्ज़ है कुतुबुन। कुतुबुन माने किताबें, अतफालुन, अतफालुन माने बच्चे, इसी तरह से मदारिसु, मदारिसु माने मदरसे। अब देखो लफ्ज़ कुतुबुन का माना है किताबें। कुतुबुन का लफ्ज़ वाहिद हुआ कि मुसन्ना की जमा। किताबें जो एक को बतलाए वाहिद, जो दो को बतलाए मुसन्ना, जो दो से ज़ायद को बतलाए जमा। किताबें इससे एक चीज़ मुराद होगी या दो से ज़ायद, बहुत सारी चीज़ें मुराद होंगी ना। तो लफ्ज़ कुतुबुन वाहिद हुआ कि मुसन्ना की जमा, जमा। इसी तरह देखो अतफालुन बच्चे, लफ्ज़ अतफाल बच्चे, एक बच्चा मुराद है, दो बच्चा मुराद है, बहुत से बच्चे मुराद है, बहुत से। तो लफ्ज़ अतफाल क्या हुआ? वाहिद की मुसन्ना की जमा, जमा। मदारिसु मदरसे, एक मदरसा मुराद हुआ, दो या दो से ज़ायद, दो से ज़ायद, तो लफ्ज़ मदारिस क्या हो गया? जमा। देख रहे हो? लेकिन यहाँ देखो ये सब के सब जमा का माना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? देखो इधर देखो, कुतुबुन किताबें, अतफालुन बच्चे, मदारिसु मदरसे, है कि नहीं? लेकिन इसके आखिर में वाव नून है। देखो इसके आखिर में वाव नून है तो जमा सालिम मुज़क्कर हुई नहीं। इसके आखिर में अलिफ ता है, जमा सालिम मुअन्नस हुई नहीं। लेकिन जमा है कि नहीं तीनों? तो फ़ौरन समझ जाओ यही जमा मुकस्सर है। तो जमा मुकस्सर की समझ पहचानने का क्या तरीका है? अगर कोई लफ्ज़ जमा का माना दे रहा हो लेकिन उसके आखिर में ऊना और आतुन ना हो तो समझ जाओ अब क्या है वो? जमा मुकस्सर। जैसे नवाफिजु माने खिड़कियाँ, लफ्ज़ नवाफिजु वाहिद का माना दे रहा है कि मुसन्ना की जमा का, लेकिन इसके आखिर में वाव नून है नहीं, इसके आखिर में अलिफ ता है नहीं। अब कौन सी जमा हो जाएगी? जमा मुकस्सर। मरावियु पंखे, पंखे का लफ्ज़ वाहिद का माना दे रहा है या मुसन्ना या जमा, लेकिन इसके आखिर में वाव नून है, अलिफ ता है नहीं, तो कौन सी जमा मानी जाएगी? जमा मुकस्सर। औलादुन माने बच्चे, लफ्ज़ औलाद जमा का माना दे रहा है कि नहीं दे रहा है? वाव नून है इसके आखिर में, अलिफ ता है, तो कौन सी जमा मानी जाएगी? जमा मुकस्सर। हर वो लफ्ज़ जिसके आखिर में वाव नून ना हो या अलिफ ता ना हो लेकिन जमा का माना दे तो वो क्या हो जाएगा? जमा मुकस्सर। अब तरीका याद रखें, जमा सालिम मुज़क्कर उस जमा को कहेंगे जिसके आखिर में वाव नून बढ़ाकर जमा बनाएंगे, ठीक। जमा मुकस्सर उस जमा को कहेंगे जहाँ अलिफ ता बढ़ाकर जमा बनाएगी, ठीक। और जमा मुकस्सर उस जमा को कहेंगे जिसमें वाव नून या अलिफ ता बढ़ाकर जमा ना बनाएगी। अब तारीफ ऐसी याद रखना, जमा सालिम मुज़क्कर उस जमा को कहते हैं जिसमें जमा बनाने के लिए क्या बढ़ाया गया हो? वाव नून। जमा सालिम मुअन्नस उस जमा को कहते हैं जिसमें जमा बनाने के लिए क्या बढ़ाया गया है? अलिफ ता। जमा मुकस्सर उस जमा को कहेंगे जिसमें वाव नून या अलिफ ता ना, लेकिन जमा का माना हो। समझ में आ गई बात? अब ये बात में समझना कि जमा सालिम, इसको जमा सालिम क्यों कहते हैं, इसको जमा मुकस्सर क्यों कहते हैं, चीज़ें बाद में बताई जाएंगी। लेकिन आज इतनी याद रखना है, वाहिद से अगर जमा सालिम मुज़क्कर बनाना है तो तुम्हें बढ़ाना है वाव नून, वाहिद से जमा सालिम मुअन्नस बढ़ाना है तो तुम्हें बनाना है तो तुम्हें क्या बढ़ाना है? अलिफ और ता। और जमा मुकस्सर बनाने का कोई तरीका नहीं है। इतनी चीज़ समझ में आ गई? चलो तो जमा सालिम मुज़क्कर उस जमा को कहते हैं जिसमें हमने वाव और नून जोड़कर जिसे जमा बनाया, ठीक। जमा सालिम मुअन्नस उस जमा को कहेंगे जहां अलिफ और ता जोड़कर जमा बनाई गई हो, और जमा मुकस्सर उस जमा को कहेंगे जहां ऐसा ना, जिसमें वाव नून या अलिफ ता जोड़कर जमा ना बनाई। अब सवाल पैदा होता है
کہاں واو نون جوڑیں گے اور کہاں الف تا جوڑیں گے، یعنی کب جمع سالم مذکر بنائیں گے اور کب جمع سالم مؤنث بنائیں گے۔ یہ سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ یہ تو جانتے ہو، واو نون جوڑ دیا تو جمع سالم مذکر، الف تا جوڑ دیا تو جمع سالم مؤنث، لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کب الف تا جوڑو گے یعنی جمع سالم مؤنث کب بناؤ گے اور کب جمع سالم مذکر۔ تو اس کو دیکھو یہاں ساجدن، زاہدن، عابدن، ٹھیک، ساجدتن، ذاہبتن، تیسرا لفظ کیا ہے؟ عابدتن۔ اچھا ادھر دیکھو، یہ لفظ جو ہے واحد ہے کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ یہ سب مذکر ہے کہ مؤنث ہیں؟ مذکر۔ کیسے معلوم؟ کیونکہ اس کے آخر میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے۔ یہ تمام الفاظ مذکر ہیں کہ مؤنث ہیں؟ مؤنث ہیں۔ کیسے معلوم؟ کیونکہ اس کے آخر میں مؤنث کی علامت ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ مذکر سے، واحد مذکر سے جمع سالم مذکر بنائی جاتی ہے۔ واحد مذکر سے جمع سالم مذکر بنائی جائے گی، اور ایک مؤنث ہے نا، واحد مؤنث سے جمع سالم مؤنث بنائی جائے گی۔ ہاں سمجھ گئے کہ نہیں بات؟ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اگر مؤنث ہو تو کیا بناؤ گے؟ جمع سالم مؤنث۔ مذکر ہو تو کیا بناؤ گے؟ جمع سالم مذکر۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر لفظ مؤنث ہے اس کی تمہیں جمع بنانا ہے تو تم یہ بناؤ گے کہ یہ بناؤ گے؟ اگر لفظ مؤنث ہے تو تم اس سے جمع سالم مؤنث بناؤ گے یا جمع سالم مذکر؟ مؤنث۔ جب مؤنث ہے تو مؤنث والی جمع بنے گی، اور جب مذکر ہو تو مذکر والی۔ ٹھیک، اب یہ دیکھنا ہے کہ کیسے بنائیں گے۔ تو میں نے طریقہ بتا دیا تھا، جمع سالم مذکر بنانا ہے تو لفظ کے آخر میں ایک پیش دو، ساجدو، آخر میں واو نون جوڑ دو، کیا ہو جائے گا؟ ساجدونا۔ زاہبو بناؤ اس کو، پھر واو نون جوڑ دو، زاہبو نا۔ عابدن کو عابدو کرو، پھر واو نون جوڑ دو، کیا ہو جائے گا؟ عابدو نا۔ اب اس طرح سے لکھو، ساجدونا، زاہبونا، عابدونا۔ ہاں اب ادھر آؤ، ساجدتن، ذاہبتن اور عابدتن۔ اس کی جمع بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہاں جاؤ گے یا یہاں جاؤ گے؟ جمع سالم مؤنث۔ ٹھیک، جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ کیا جانتے ہو؟ جمع سالم مؤنث بنانے کے لیے الف اور تا بڑھاتے ہیں، یعنی آتن۔ لیکن کس طرح سے؟ یہ جو گولتا ہے اس کو گرا دیں گے، اس گولتا کو گرا دیں گے، اس گولتا کو گرا دیں گے۔ اب آتن بڑھا دیں گے، ساجدہ تن، زاہبہ تن، پھر عابدہ تن۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟